السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 11th، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے گیس لاز کمپلیٹ کیے اور گیس ایکویشن، جس کو ہم آئیڈیل گیس ایکویشن کہتے ہیں، آئیڈیل گیس ایکویشن جو ایکچولی کمبینیشن آف بوائلز لا، چارلز لا اینڈ ایووگیڈروز لا ہے، تو اس کو بھی ہم نے اسٹڈی کیا، ڈرائیو کیا، اس پہ نیومیریکلز بھی کی. اس کی دو فارمز ہمارے پاس آ گئی، P1V1/T1 = P2V2/T2، اور جس کی جنرل فارم ہے وہ ایکچولی PV = nRT. یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کا اچھا واسطہ رہا ہے. اب اس پہ نیومیریکلز بھی ہم نے سالو کی ہیں. تو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے دیٹ از آئیڈیل اینڈ ریئل گیسز، یعنی آئیڈیل گیس اینڈ ریئل گیس. بہت ہی سمپل سا ٹاپک ہے، آسان سا ٹاپک ہے انڈرسٹینڈ کرنا. تو یہاں پر ایک بات میں آپ لوگوں کو عرض کروں، وہ یہ کہ جب ہم گیس لاز کی بات کرتے ہیں، جس میں بوائلز لا، چارلز لا، ایووگیڈروز لا، ایمنٹونز لا وغیرہ آتے ہیں، تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گیس لاز ہیں، دیز آر دا پراپرٹیز آف دا گیسز ایکچولی، جو ہمیں کوانٹیٹیو ریلیشن شپ دے رہا ہے بٹوین ماس، ٹیمپریچر، والیوم اینڈ پریشر. تو ہم نے سٹارٹ پہ ہی پڑھ لیا کہ گیسز جو ہیں وہ یہ گیس لاز اوبے کرتے ہیں. یہ وہ آبزرویشنز ہیں جو ایکسپیریمنٹلی ویریفائی کیے گئے ہیں. تو حقیقت میں جب ہم یہ گیس لاز اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم مختلف میتھمیٹیکل ایکویشنز حاصل کرتے ہیں. بوائلز لا کے الگ، چارلز لا کے لیے الگ، ایمنٹونز لا کے لیے الگ، ہر لا کے لیے اپنی الگ میتھمیٹیکل ایکویشنز ہیں، اور ہم ان ایکویشنز کو مختلف گیسز پہ اپلائی کرتے ہیں. اور زیادہ آسان یہ ہے کہ اب ان سارے گیس لاز کو، جیسے بوائلز لا، چارلز لا، ایووگیڈروز لا ہے، ان لاز کو کمبائن کر کے ہم ایک ہی ایکویشن حاصل کرتے ہیں، PV = nRT. ٹھیک ہے نا؟ تو جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی لا جو ہے یا کوئی گیس جو ہے وہ اوبے کرتا ہے کسی لا کو، سپوز کوئی گیس ہے ہمارے پاس، ہائیڈروجن گیس، آکسیجن، نائٹروجن، ڈفرینٹ گیسز ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ یہ گیس جو ہیں یہ گیس لاز اوبے کرتے ہیں. گیس لاز اوبے کرنے کا مقصد ہوا، گیس لاز جب ہم کہتے ہیں کہ اینی گیس اوبے دا گیس لا، تو اوبے دا لا کا مطلب ہوا کہ ایکسپیریمنٹل ویلیو اور تھیوریٹیکل ویلیوز جو ہے، ایکسپیریمنٹل ویلیوز اور theoretical values. Theoretical value means the values calculated from the equations obtained from gas laws. جب ایکسپیریمنٹل ویلیو اور تھیوریٹیکل ویلیو ایک جیسے ہوں، سیم ہوں، when experimental values and theoretical values are same، تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ گیس جو ہے it obeys the gas law. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح سے جب ہم یہ کہیں گے کہ کوئی گیس آئیڈیل گیس ایکویشن اوبے کرتا ہے، چونکہ آئیڈیل گیس ایکویشن جو ہے اٹ از دا کمبینیشن آف گیس لاز. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی گیس، کسی گیس میں ایکسپیریمنٹل ویلیو اور تھیوریٹیکل ویلیو کیلکولیٹڈ فرام گیس ایکویشن سیم ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گیس جو ہے یہ سارے گیس لاز اوبے کرتا ہے. جب کوئی گیس لاز اوبے کرتا ہے، ایک بار پھر سے سنیے، اوبے کرنے کا مطلب ہوا کہ جو ہمیں ایکسپیریمنٹلی ویلیو حاصل ہو رہا ہے، والیوم کے لیے، ٹیمپریچر کے لیے، پریشر کے لیے، یا کسی بھی ویریبل کے لیے جو ویلیو ہمیں ایکسپیریمنٹلی حاصل ہو رہا ہے، اگر وہی ویلیو ہمیں گیس ایکویشن کی مدد سے حاصل ہو رہا ہے، یعنی دونوں ویلیو ایک جیسے ہیں، تو اس گیس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس گیس نے گیس لا کو اوبے کیا. ٹھیک ہے نا؟ آپ سمجھ گئے کہ گیس لاز اوبے کرنے کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب بات آتی ہے آئیڈیل گیس کی. ہم کس گیس کو
आइडियल गैस कहते हैं। व्हाट इज एन आइडियल गैस? तो कोई भी ऐसा गैस जो गैस लॉज या गैस इक्वेशन ओबे करता है, एनी गैस which obeys गैस लॉज, जो गैस लॉज ओबे करता है, और गैस इक्वेशन, जो गैस लॉ या गैस इक्वेशन को ओबे करता है, उसी को हम कहते हैं आइडियल गैस। सच ए गैस इज कॉल्ड एज एन आइडियल गैस। जैसे मैंने पहले आपसे कहा, ओबे करने का मतलब हुआ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू। जो हम एक्सपेरिमेंटली वैल्यू देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो होता है, अगर वो वैल्यू और गैस इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट किया हुआ वैल्यू अगर एक जैसे हैं, तो हम कहते हैं कि इसने गैस लॉ को या गैस इक्वेशन को ओबे किया। अब कोई भी गैस जो गैस इक्वेशन को ओबे करता है, तो हम उस गैस को आइडियल गैस कहते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब देख लीजिए दूसरी टर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं, रियल गैस। आइडियल गैस और रियल गैस में फर्क क्या है? देख लीजिए रियल गैस हम किससे कहते हैं। रियल गैस का मतलब है कि हमारे पास जो गैसेस अब हैं, अवेलेबल गैसेस, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, अमोनिया गैस है। ये मुख्तलिफ गैसेस हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इन नेचर, या जो गैस हम लेबॉर्ट्रीज में बना रहे हैं, या जो गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं। तो ये गैसेस जो हैं, जब हम इन गैसेस पे गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं, यानी जब हम इन गैसेस में कैलकुलेटेड वैल्यूज देख रहे हैं और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देख रहे हैं, इन गैसेस में एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज और कैलकुलेटेड वैल्यूज, इन द वैल्यूज विच आर ऑब्टेन्ड आफ्टर अप्लाइंग गैस इक्वेशन, हम देख रहे हैं कि उन वैल्यूज में डिफरेंस है। देयर इज डिफरेंस in the observed value. Observed means experimental value, observed value and calculated value. Calculated value is that value which we obtain from gas equation. There is a difference in the observed value and calculated value in case of the gases which I have mentioned here, those gases which are found in nature. इन gases में जब हम observed value देखते हैं तो और फिर कैलकुलेटेड वैल्यू देखते हैं, जब उनको हम कंपेयर करते हैं, तो इनमें इनके दरमियान डिफरेंस है, वो एक जैसे नहीं होती, वैल्यूज डिफर फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि ये गैस जो है, दे डू नॉट ओबे द गैस लॉज, दे डू नॉट ओबे द गैस लॉज और गैस इक्वेशन। ये गैस लॉज या गैस इक्वेशन को ओबे नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ये नहीं करें तो हम कहेंगे कि आइडियल गैसेस नहीं हैं। तो आप इनके लिए टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं नॉन आइडियल गैसेस। ये गैसेस क्या हैं? नॉन आइडियल गैसेस। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, ये जो नॉन आइडियल गैसेस हैं, ये वो हैं जो गैस इन रियल सेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद हैं, इन गैसेस पे जब हम गैस इक्वेशन या गैस लॉज अप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमारा डिफरेंट आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये गैस जो है, जो इन नेचर एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये गैस इक्वेशन को ओबे नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट आइडियल गैसेस, दे आर नॉन आइडियल गैस। ही चूंकि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, बात सुनिए क्या मैं कह रहा हूँ, ये गैसेस चूंकि इन रियल सेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे नेचर में जो गैसेस हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, हमारे सराउंडिंग में जो गैसेस हैं, ये गैसेस गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ओबे नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये गैसेस जो हैं, ये नॉन आइडियल हैं। बट एट द सेम टाइम क्योंकि ये गैस एग्जिस्ट कर रहे हैं इन नेचर, नॉन आइडियल हैं बट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये सारे गैसेस जो हैं, अब इन्हें हम रियल गैसेस कहते हैं। दीज गैसेस आर कॉल्ड एज, इन रियल गैसेस आर दोज
are those gases which do not obey gas laws under all conditions of temperature and pressure. इसका मतलब ये हुआ कि हर वक्त ये गैस, हर हाल में ये गैस इन गैस लॉज को ओबे नहीं कर रहे हैं। इसलिए चूंकि ये गैसेस इन रियल सेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में, तो इन्हें हम नॉन आइडियल गैस के बजाय टर्म रियल गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें मैंने एक और पॉइंट ये लिख लिया कि अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, में हर टेम्परेचर कंडीशन, प्रेशर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे ये गैस लॉज ओबे नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी ये गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते होंगे किसी खास टेम्परेचर पे, किसी खास प्रेशर पे। तो देखा गया है कि जब गैसेस का प्रेशर वेरी लो होता है, एट लो प्रेशर and at high temperature, जब टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर लो होता है, तो उस सूरत में रियल गैसेस जो होते हैं, रियल गैसेस ओबे एज या एक्ट एज आइडियल गैसेस। यानी हर टेम्परेचर और प्रेशर पे नहीं, बल्कि किसी खास टेम्परेचर और प्रेशर पे। जनरली वो प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर, और टेम्परेचर क्या होता है, हाई टेम्परेचर और किसी लो प्रेशर पे ये गैसेस बिहेव करते हैं एज एन आइडियल गैसेस। आप इस तरह से उसको समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास बॉयलर्स लॉ है, उसमें आपने देख लिया PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है इट इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये बॉयलर्स लॉ की इक्वेशन है, P1 V1 इज इक्वल P2 V2, आपको याद है ना। तो उसी इक्वेशन में से हमें इक्वेशन आती है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर हम किसी गैस के लिए अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन PV एंड P, चूंकि PV जो ये कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि हमें इस तरह की एक लाइन आनी चाहिए पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमें इस तरह की लाइन मिलनी चाहिए, क्योंकि PV जो है कांस्टेंट है। तो ये लाइन जो है इट रिप्रेजेंट्स दैट PV रिमेन्स कांस्टेंट, इट डजंट चेंज। तो अब अगर हम डिफरेंट गैसेस के लिए ये PV प्लॉट करते हैं अगेंस्ट P, तो आप देखते हैं कि इस तरह के हमें कर्व्स आते हैं। एक गैस के लिए इस तरह की कर्व आती है, इसी तरह से एक और गैस के लिए इस तरह की कर्व आती है, एक और गैस के लिए इस तरह की कर्व आती है, एक और गैस के लिए इस तरह की कर्व आती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स आर ओब्टेन। हाल आनी कैसी चाहिए थी, अगर गैस रियल होता, आइडियल गैस होता, तो फिर इस तरह की कर्व लाइन आनी चाहिए थी पैरेलल टू दिस y एक्सिस या x एक्सिस। तो आती कर्व्स जो है वो इस तरह की आती हैं। तो ये कर्व जो है ये हीलियम गैस के लिए है, ये हाइड्रोजन गैस के लिए है, और ये कर्व मीथेन गैस के लिए है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है। तो अब आप खुद देख लीजिए, कोई भी कर्व एग्जैक्टली पैरेलल नहीं आती है, या इस आइडियल गैस के लिए जो लाइन है इसके साथ कोई कोइंसाइड नहीं करती है, सब इससे ऊपर या नीचे जा रहे हैं। ऊपर नीचे जाने का मतलब यही हुआ कि ये जो रियल गैसेस हैं, ये जो एक्चुअल गैसेस हैं, ये आइडियल गैस के साथ रिजेंबल नहीं कर रहे हैं, आइडियल गैस के साथ इनका ग्राफ कोइंसाइड नहीं कर रहा है। अब ये है कि कुछ गैसेस जो हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस जो है, इनकी कर्व जो है PV जो है वो पहले नीचे आ जाती है, कम होता है विथ इंक्रीजिंग प्रेशर, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है। तो बढ़ने के साथ साथ एक पॉइंट ऐसा आता है जब इनकी कर्व आइडियल गैस इक्वेशन की कर्व के बराबर आ जाती है। उसके बरक्स जो हाइड्रोजन और हीलियम है, आप देख लीजिए इनकी लाइन जो आती है वो आइडियल गैस इक्वेशन के साथ मैच नहीं करती है कहीं पर। तो इसका मतलब ये हुआ
कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैसेस जो हैं एक ख़ास प्रेशर पे ये कोइंसाइड करते हैं, ये बिहेव करते हैं एज एन आइडियल गैस। तो वही बात हम ऊपर कह रहे हैं कि गैसेस जो होते हैं वो अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एज एन आइडियल गैस बिहेव नहीं करते हैं। किसी खास टेम्परेचर और प्रेशर पे अक्सर बेशतर ये बिहेव करते हैं बिहेव करते हैं एज एन आइडियल गैसेस। तो इन्हीं गैसेस को हम रियल गैसेस कहते हैं। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि जो रियल गैस है, रियल गैसेस जो हैं ये आइडियल गैस इक्वेशन के बराबर इनका वैल्यू नहीं होता है। इनका वैल्यू जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन से कम भी हो सकता है, इनका वैल्यू जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन से ज़्यादा भी होता है। यानी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है या ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो होगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू इट विल बी either less than the calculated value, or it will be greater than the calculated value। जाहिर सी बात है जब हम ये कहते हैं कि वैल्यू जो है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है या ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ ये या तो इससे ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो पहली बात कि वैल्यू एक जैसा नहीं है। जब वैल्यू डिफरेंट है तो हम कहते हैं ये गैसेस जो हैं दे शो डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, दे शो डिविएशन, इनका वैल्यू एक जैसा नहीं है, इनका वैल्यू डिविएट हो जाता है, कम होता है या ज़्यादा, कम होना या ज़्यादा होना, दैट इज डिविएशन। दैट इज इसका मतलब ये हुआ कि आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT। तो ये जो रियल गैसेस हैं इनमें PV इज नॉट इक्वल टू nRT, PV nRT के बराबर नहीं होगा। या तो PV होगा ग्रेटर देन nRT या PV होगा लेस देन nRT। अगर PV nRT के बराबर है तो फिर ये आइडियल गैस है। अब अगर ये आइडियल गैस नहीं, ये डिविएशन दिखा रहा है, डिविएशन का मतलब ये हुआ कि बराबर नहीं है, तो क्या होगा, PV विल बी ग्रेटर देन nRT या PV विल बी लेस देन nRT। अगर ये ग्रेटर देन nRT है तो हम कहते हैं कि इसने पॉजिटिव डिविएशन दिखाई, अगर ये लेस है तो हम कहेंगे इसने नेगेटिव डिविएशन दिखा दी। ठीक है ना। तो अब ये डिविएशन कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन में एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। वी इंट्रोड्यूस ए फैक्टर Z इन दिस इक्वेशन, और उस फैक्टर को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है it is represented by Z, and this compressibility factor Z is introduced in this ideal gas equation जिसको हम PV is equal to nRT है। तो इस तरह से नई फॉर्म जो इक्वेशन की बनती है that is PV is equal to ZnRT, PV is equal to ZnRT, जहां पर ये Z जो है it is called as compressibility factor। अब देख लीजिए अगर ये Z जो है if it is equal to 1 तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी, PV is equal to nRT। इसका मतलब ये हुआ जब Z is equal to 1 तो गैस जो है it is an ideal gas। ठीक है ना, गैस इज एन आइडियल गैस। अब अगर Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इफ इट इज ग्रेटर देन 1, इफ Z इज ग्रेटर देन 1 तो हम इसको कहते हैं कि गैस जो है इट हैज शोन पॉजिटिव डिविएशन। इसी तरह से अगर Z का वैल्यू लेस देन 1 आता है तो इसका मतलब ये होगा कि PV अब बराबर नहीं होगा nRT के, तो जाहिर सी बात है वैल्यू कम होगा, तो उस वक्त हम कहेंगे कि इस गैस ने नेगेटिव डिविएशन दिखा दी, पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन। ठीक है ना। तो एक और पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिए, वन थिंग मोर, वो ये कि गैसेस जो हैं, आइडियल गैसेस जो हैं, जैसे आपने देख लिया जब हम PV प्लॉट करते हैं अगेंस्ट P एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर तो हमें डिफरेंट कर्व्स आ जाते हैं। तो रियल गैसेस में कुछ गैसेस ऐसे हैं जिनका वैल्यू या जो कभी कभी इस आइडियल गैस
इक्वेशन के इस प्लॉट से कोइंसाइड हो जाते हैं, यानी किसी टेम्परेचर पे, किसी प्रेशर पे ये बिहेव करते हैं एज आइडियल गैसेस, और कुछ ऐसे गैसेस भी हैं जो नहीं करते हैं। तो ये सारे गैसेस जो हैं जनरल में रियल गैस हैं, बट सम गैसेस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर और एट ए पर्टिकुलर प्रेशर बिहेव एज आइडियल गैसेस। तो देखा गया है जो गैसेस इजीली लिक्विफाइएबल हैं, इजीली लिक्विफाइएबल गैसेस, जिसमें अमोनिया आता है, सल्फर डाइऑक्साइड अमोनिया गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये गैसेस जो हैं ये ज़्यादा डिविएशन दिखाते हैं, दे शो मच डिविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। उसके बरक्स जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, वगैरह वगैरह गैसेस जो होते हैं, ये गैसेस जो होते हैं तो इनमें कम डिविएशन होती है। किसी वक्त ये गैसेस जो होते हैं, समटाइम्स these gases behave as real gases, आइडियल गैसेस। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं, जो एक्चुअली ये गैस जो है इजीली लिक्विफाइबल हैं, इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो इन अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इनमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ये गैसेस जो होते हैं दे समटाइम्स बिहेव एज आइडियल गैसेस। उसके बरअक्स जो हाइड्रोजन, हीलियम हैं, इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हैं, स्मॉल हैं, नेग्लिजिबल हैं, तो ये गैसेस जो होते हैं ये ज़्यादा डिविएशन दिखाते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। तो इस तरह से ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है आइडियल और रियल गैस का। तो आप इसमें ये बात नोट करके रखिए कि आइडियल और रियल गैसेस जो होते हैं, रियल गैसेस वो हैं जो एक्चुअली इन नेचर एग्जिस्ट करते हैं। ये वो गैस हैं जो गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ओबे नहीं करते हैं। अब अगर कोई गैस ऐसा करेगा तो उस गैस को हम आइडियल गैस कहेंगे, जो ओबे करेगा, जिसमें कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल वैल्यू एक जैसे, थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक जैसे होंगे, वो आइडियल गैस होंगे। जो ऐसा नहीं करेंगे वो रियल गैसेस हैं। तो आप सिंपली ये बात याद रखिए कि ज़्यादातर गैसेस वो हैं जो रियल गैसेस हैं, यानी जो आइडियल गैस इक्वेशन ओबे नहीं करते हैं। अब अगर करते भी हैं तो उसके लिए प्रेशर लो होना चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे कोई भी गैस बिहेव कर सकता है एज एन आइडियल गैस, मगर जो ऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हैं उस पे बड़ी मुश्किल से ही कोई गैस बिहेव करता है एज एन आइडियल गैस। तो इस एतबार से आप ये भी कह सकते हैं कि जो आइडियल गैस है ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट नहीं है, मगर फिर भी हम इस कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ताकि इससे हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक था, आइडियल एंड रियल गैसेस। होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन अ सिंपल वे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हमारा नया टॉपिक आएगा। तो तब तक के लिए वस्सलाम।